Jai Swaminarayan to all. As you all know that our chapter 10 is completed. Today we are going to start a new chapter in 12th science, which is chapter 11, the dual nature of radiation and matter. So the first, we are going to discuss two topics, from which the first one is topic 11.1 introduction. So going through the introduction, the Maxwell equation of electromagnetism and Hertz experiment on the generation and detection of electromagnetic waves in 1887 strongly established the nature of light. वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब कि ये जो मैक्सवेल के इक्वेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने किया था, तो उसने एक और चीज को डेवलप किया या बाहर निकाला, जो है वेव नेचर ऑफ लाइट. एंड उसी दौरान 19th सेंचुरी के एंड में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर्स इन डिस्चार्ज ट्यूब लेड टू मैनी हिस्टोरिक डिस्कवरीज. मतलब उसी दौरान 19th सेंचुरी के एंड में और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है. उसमें से जो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे है बाय रॉन्टजन इन 1895 एंड इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन इन 1987 वर इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर. It was found that sufficiently low pressure, about 0.01 mm of mercury column, a discharge took place between the two electrodes, and applying the electric field to gas in the discharge tube, a fluorescent glow appeared on glass opposite to the cathode. The color of glow of glass depend on the type of glass. मतलब कि जिस कलर का ग्लास ग्लो करेगा वो ग्लास के टाइप पे डिपेंड करता था. और इन बीइंग येलोइश ग्रीन फॉर द सोडा ग्लास के लिए जो कलर होता था वो था येलोइश ग्रीन. The cause of this fluorescence was attributed to radiation which appeared to coming from cathode. These cathode rays were discovered in 1870 by William Crooker, who later in 1879 suggested that these rays consist of stream of fast moving negatively charged particles. मतलब ये जो cathode rays थे, ये इस साइंटिस्ट क्रूक ने 1870 में डिस्कवर किए थे, और फिर 1879 में उसने ये कहा कि ये जो रेज है वो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उससे बने हैं. द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन कंफर्म दिस हाइपोथेसिस. मतलब इस हाइपोथेसिस को लेटर कंफर्म किया जे थॉमसन ने, जो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था. फिर applying mutually perpendicular electric and magnetic field across the discharge tube, J.J. Thomson was the first to determine experimentally the speed and specific charge of these cathode ray particles. They were found that to travel with speed ranging from about 0.1 to 0.2 times the speed of light, which is 3 into 10 raised to 8. जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो होती है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. The presently expected value of E per m is 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kilogram. Further, the value of EM was found to be independent of nature of the material or metal that is used as cathode or emitter, or the gas that is introduced in the discharge tube. And this observation suggested that the universality of cathode ray particles. ठीक है, अराउंड द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम के दौरान 1887 में ये बाहर आया था कि सर्टेन मेटल्स जो होते हैं वर इरिटेटेड बाय अल्ट्रावायोलेट लाइट, UV light emitted negatively charged particles having small speeds. Also certain metals were needed, heated to high temperature, were found to emit negatively charged particles. The value of EM of this particle was found to be same as the value of the cathode ray particles, and this observation established these particles.
although produced under different conditions, were identical in nature. J.J. Thomson in 1897 named these particles as electron. मतलब ये जो पूरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जो कैथोड रेज में और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस हुए, उसे नेम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अवर कंडक्टर एंड सजेस्टेड दैट दे वर फंडामेंटल यूनिवर्सल कंस्टिट्यूट ऑफ मैटर. For his epoch-making discovery of electron through the theoretical and experimental Nobel Prize investigations on conduction of electricity by gases, he was awarded by a Nobel Prize. Then एक और था फिजिसिस्ट मिल्कमैन जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक चार्ज वर एस्टैब्लिश्ड. From the value of E and specific charge Em, the mass of electron could be determined. मतलब जो Em में E है वो इलेक्ट्रॉन है और M जो है वो मास है. E हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है E और M जो है उसका मास है और उसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये तो है हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन. Now we will move to our next topic that we are going to discuss is topic 11.2, which is electron emission. तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में हम पहले तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है. तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ देख लेते हैं कि नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री मूविंग पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन फ्री मूविंग पार्टिकल्स किसके अंदर होते हैं? तो कंडक्टर के अंदर. और इसका रीजन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को सभी जगह फ्रीली मूव करने के लिए, मतलब सभी जगह वो फ्रीली मूव करते, तो अगर आप किसी कंडक्टर को टच करते तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बॉडी में चली जाती है और उससे आपको करंट भी लग सकता है. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर एक कंडक्टर होता है, उसी की बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, उसके बाहर नहीं आ सकते. और ऐसा भी नहीं है कि कंडक्टर में वो फुल्ली फ्रीली मूव कर सकते हैं. वो जो हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं, उससे भी बाउंडेड होते हैं. पूरी तरह से वो फ्री टू मूव नहीं होते, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से कनेक्टेड और बाउंडेड होते हैं. अब इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें कंडक्टर में से बाहर लाना है तो कुछ एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. एंड दिस एनर्जी वी डिफाइन इट एज वर्क फंक्शन. Means the energy that is required to take the electrons out of a conductor, or the external energy that is required to take the electrons out of the conductor is work function, and we denote this work function as phi. Yeah, we can also denote it as phi 0. Okay. Now this work function is measured in terms of EV. EV means electron volt. अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? तो अगर हम इस EV को जूल में कन्वर्ट करें तो इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 या 1.602 इनटू 10⁻⁻19 जूल. तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा. मतलब EV को कन्वर्ट करने के, EV को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उसे जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. मतलब ये जो यूनिट है वो नॉर्मली एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है. द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस. मतलब ये जो वर्क फंक्शन हमें दिया गया है वो मेटल की प्रॉपर्टीज और उसके नेचर ऑफ इट्स सरफेस पे डिपेंड करता है. The value of work function of some metal is given in a table. मतलब कि आपकी बुक में एक टेबल है, टेबल 11.1, जिसमें मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू, मतलब मेटल के कुछ वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू दी गई है. उसके हिसाब से तो जो पहला मेटल है वो है CS.
तो Cs की जो हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है वो है 2.14। और सेम दूसरा है कि जिसकी EV वैल्यू है 2.30। एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है वर्क फंक्शन की वो है 4.28। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स है जिसकी वैल्यूज उस टेबल में दी गई है और these values are approximate as they were sensitive to surface impurities। मतलब ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट्स वैल्यू है जो उसके सरफेस की इम्प्योरिटीज की वजह से हमें अप्रोक्सीमेट करनी पड़ी। अब दूसरी चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो टेबल है 11.1 दैट द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज हाईएस्ट। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो प्लेटिनम का जो वर्क फंक्शन होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस। मतलब कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर एमिट करना होगा तो उसको एक फिजिकल प्रोसेस से करना पड़ेगा और वो फिजिकल प्रोसेस क्या है, तो 3 फिजिकल प्रोसेसेस है। पहली जो है वो है थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन में बेसिकली होता क्या है कि बाय सूटेबल हीटिंग, मतलब उसको कुछ अमाउंट तक हीट करना पड़ेगा। सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू एनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। मतलब कि जो मेटल है उसे थोड़ा हीट करना पड़ेगा और जब उसे हीट करेंगे तो वो एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से जो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो थी पहली फिजिकल प्रोसेस थर्मियोनिक एमिशन। दूसरी फिजिकल प्रोसेस है फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन में क्या होता है, फील्ड एमिशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल्स के ऊपर और उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁸ V पर मीटर होता है। मेटल को जो दिया जाता है वो, एंड दिस वे इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ मेटल एज इन स्पार्क प्लग। मतलब कि जब हम इस मेटल पे 10⁸ V पर m की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के वो बाहर आ जाएंगे और किस फॉर्म में आएंगे, तो स्पार्क प्लग के अंदर आएंगे। तो ये था फील्ड एमिशन। अभी तीसरा जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के यूज करके हमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस। मतलब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम मेटल पे इल्यूमिनेट करें तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से एमिट होके बाहर आएंगे एंड दिस फोटोलाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जिस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो ये था हमारा टॉपिक 11.2 इलेक्ट्रॉन एमिशन की इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और उसे मेटल या कंडक्टर से बाहर लाने के लिए किन किन प्रोसेसेस की यूज करना पड़ता है वो। The further remaining topics will cover it in next video. That is it. Thank you.